سمجھ سکیں، نہ کسی کو کچھ اس طرح کہہ سکے. چھوٹا ہر ڈان صاحب، آپ بھائی یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ کو علم چھوٹا نہیں ہے تو ڈان قرآن صاحب، کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ جی آپ جی میری بات بغیر سنتے دلیل ہیں، کے دور قرآن پہ کہتا ہے بیٹھے دلیل ہیں. سے بات کرو، آپ جی قرآن جی کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں 2 منٹ منی گوڈ کا بڑا گوڈ آ گیا جی میرے بچانے بھائی قادیانیوں کو. میں کوئی گالی دے رہا ہوں، کوئی نذیر صاحب، بدتمیزی کر رہا ہوں، آپ مائک نہیں پہ آپ میری بات سنیں. لائن ہارٹ بھائی، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم بحث و مباحثہ کر سکیں. ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ قادیانی بغیر دلیل کے کافر ہے، یہ مرتد ہیں، قرآن کی تعلیم کافر کے ہے. خلاف بے بات کر، شک قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت قرآن محمد صلی کریم اللہ میں علیہ وسلم لکھا کے ہوا ہے کہ بعد دلیل سے بات کریں، دلیل سے اور بات یہ کریں، جو قرآن مرزے کی حکم دے رہا ہے. تصویر لگائی ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کے منہ پر لعنت لکھو، ٹھیک ہے، اور جوتا نہیں ہار پہنا کے پھر لگاؤ. چھوٹا آپ ڈان لوگوں کو صاحب گالیاں ایک سے منٹ دیں. اسلام، آپ کے مولوی کے اسلام نے اچھا دیکھیں گالیاں جی، سکھائی ہم ہیں، نے بکواس سکھائی ہے، غلط تعلیم پہلے دکھائی ہے. نذیر یار پہلے نا اپنے یہ چھوٹا ڈون بھائی آپ مائک میوٹ کریں. چھوٹا ڈون بھائی سارے مائک پلیز آہستہ سے دیکھیں جی، ہم تحمل سے نے بات کریں. ایک جی مرزائی اور ایک قادیانی اکٹھے کر دیے ہیں. ایک رائٹ سائڈ پہ مرزا انجینئر کے ماننے والا مرزائی ہے، آپس میں اور عثمان نذیر بھائی ذرا ان کو آپس میں بات کرنے دیں ذرا. جی لائن صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی لکھ دی لعنت ہے اس پہ، اور نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. آپ دونوں ذرا اس پہ بات کریں. جی جی نذیر صاحب مائک کھولیں. ایک میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کو مولوی نے غلط اسلام پڑھا دیے، قرآن کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، دلیل بغیر دلیل کے. پہلے قرآن آپ کریم یہ فرما رہا ہے بتائیں، کہ دلیل سے بات کرو، پہلے یہ اے بتائیں انسان آپ دلیل سے بات مسلمان کر. ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سے بات بھی کریں گے. جو نہیں بات سنیں، یہ جو آ کر آپ قرآن جھوٹ بول، نہیں رمضان کے نہیں، آپ مہینے میں آپ کو مسلمان مولوی ہیں نے جھوٹ کہ نہیں سکھایا یہ ہے. بتائیں پہلے. اور ختم خادم نبوت رضوی پر نے آپ کا جو آپ کو یقین ہے؟ یہ بغیر دلیل کے بات آپ کفر کا ختم سکھایا. نبوت پر یقین ہے؟ یہ تعلیم قرآن کریم کی نہیں ہے. آپ کا ختم مسلمانوں جاگو، نبوت پر یقین ہے؟ مسلمانوں جاگو، یہ کفر کی آپ کا تعلیم دی ختم جا رہی ہے نبوت آپ پر کو، یقین اسلام کی ہے؟ تعلیم نہیں دی جا رہی. یہ کتا جو ٹٹی میں مرا تھا واش روم میں، اس پر لعنت بھیجتے ہو جس کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ مطلب یہ جو لانتی وہ ہیں جنہوں نے تمہیں اسلام کی غلط تعلیم تمہارے دماغوں میں ڈال دی ہے. قرآن کی تعلیم ہے نہیں، اس یہ کو قرآن لعنتی بنا نہیں کے ہے، آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہو. آپ یہ لوگوں کو لعنتی شرم ہے، نہیں یعنی ہے. رمضان میں جھوٹ بولتے ہو اور نہیں اسلام یہ کی تعلیم لعنتی غلط نہیں ہے بتاتے ہو جس کی لوگوں کو. تصویر لگی ہوئی ہے. گالی نہ نکالیں. گالی کوئی نہ نکالے، گالی لوگ نہیں مسلمان نکالنی. گالی نہیں تو نکالتے. بھائی میں نے گالی نہیں دی، لائن ہارٹ بھائی میں نے ابو گالی حسن گالی بھائی نہیں نہیں بات دی. کریں. ویسے ان کی آپ بات کتابوں کریں میں ان سے. لکھا ہوا ہے وہ واش روم میں مرا نہیں ہے. نہیں ویسے بات کریں. جی جی آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ نہیں بغیر چلیں، دلیل وہ کے، اس آپ پر قرآن کریم دلیل کہہ سے رہا ہے کہ بات دلیل کریں. سے بات کرو. اور نہیں آپ لوگوں میں نے کو، آپ سے پوچھا ہے، میری بات آپ سنو. کو کس نے اسلام، کون سا اسلام، کس نے، مولوی نے اسلام قرآن سکھایا؟ پاک یہ کی آیت ہے آنا خاتم النبیین، اس کا کیا آنا کا، مطلب ہے؟ اوے آنا کے دادے آنا، اور وہ جو لکھا ہوا قرآن کریم کے دلیل سے بات کرو، اور ادھر ساری نیچے لکھا میں ہے وہی تو بغیر کہہ دلیل. رہا ہوں، جو میں قرآن نے کے آیت خلاف پڑھی کیوں ہے وہ جا رہے ہو غلط آپ ہے، لوگ؟ جو میں نے آپ آیت لوگ پڑھی ہے آپ نے غلط ہے. قرآن پڑھا ہے الحمدللہ پڑھا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر دلیل، بتاؤ کہ مولوی سے جاؤ سیکھ کے آؤ کہ کون سی نہیں، آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر دلیل کی بات کرنی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دلیل آنا سے بات خاتم کرو. النبیین، میں یہ کہتا ہوں میرا یہ ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں. نہیں، یہاں ایک منٹ، یہاں پہ میں اختلاف کروں گا. اور یہ جو بھائی تصویر آپ کا انہوں نے ترجمہ لگائی یہ ہوئی ہے نہیں ہے. اوپر لائن کشمیر ہارٹ کی، صاحب ایک منٹ لائن صاحب ایک منٹ دیکھیں. ایک آپ مرزا انجینئر والے ہیں، نذیر ہے صاحب قادیانی والے. دیکھیں آپ غلط بیانی نہ کریں. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، نبیوں کی مہر ہے. تو یہ اب ٹھیک ہے یہ ان کے پاس علم ہے، ہاں جی، یہ ان ادھر کو دیکھ بتا رہے ہیں، لیں. اسلام بتا رہے ہیں ختم دیکھ لیں نذیر النبیین صاحب کا ان کا معنی علم دیکھ لیں. آخری کیا نبی مطلب تھے. ہے ان کا علم جن کے دیکھ بعد لیں. کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو یہ جھوٹ لعنتی قرآن انسان کریم جو پر ان کو جھوٹ نبی بول رہے بنا ہیں. کے بیٹھے ہوئے ہیں اس خنزیر کو. اوے اسٹوڈنٹ، قرآن کریم پر جھوٹ بولتے ہو، کیسے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ قرآن مجید کے غلط معنی دنیا کو بتاتے ہو. اوقات خاتم میرے جوتے النبیین کے کے نوک معنی کے برابر آخری بھی نبی نہیں کے ہے. ہیں. کس اس مولوی نے، کی کس اوقات جو ہے میرے نا جوتے کی یہودی نوک نے کے تمہیں برابر یہ بھی نہیں بتائی ہے ہے. کہ خاتم النبیین کے یہ یہ جو ہے نا آخری مرزا نبی ہے؟ غلام احمد قادیانی کی اوقات میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں میں بس سمجھتا. یہی باتیں، گالیاں، آگے بات بکواس کر. کرنی ہے، یہی مولویوں نے سکھایا تمہیں بکواس کرنی ہے میں دوسروں کی، گالی نہیں دی، ان کے میں نے گالی برا نہیں بھلا دی، کسی کو کہنا. نذیر میں نے گالی نہیں نذیر دی. میری بات سنیں بھائی، ایک منٹ جاؤ بات سنیں. اسلام کی تعلیم سیکھ کر آؤ. نذیر صاحب ایک منٹ بات سنو. وہ مولوی کو ماننے والا نہیں، مرزا انجینئر کے ماننے والا. آپ یہ کہیں کہ اس چول نے یہ تمہیں تعلیم دی ہے، گالیاں دے رہے ہو، اس طرح کی کوئی بات کریں. ٹھیک ہے جی نذیر صاحب. مرزا انجینئر کو میں میں نے نے سنا ہے گالی کبھی نہیں اس دی، نے کبھی تعلیم نہیں دی ہے، گالیاں میں نکال نے کے، تو بلکہ گالی نہیں کہتا ہے دی. اچھی، میں یہ نے پتہ تو نہیں کہا کہاں یہ سے میرے سیکھ کر آئے جوتے ہیں. کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے مقدس میرا جوتا ہے. مرزا
और मुकद्दस का बच्चा अल्ले बे का पता नहीं है, मुकद्दस आपका जूता है और आप के मज़ार हैं और आपके जिनकी आप पूजा करते हो। इस्लाम का अल्ले बे का पता नहीं है, खातमुन नबिय्यीन का मतलब है हम आखिरी किसी नबी। की पूजा भी नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने प्यारे नबी की हदीस पे अमल करते हैं और उसी पे नजीर क़यामत तक। पूरी और वो जो किसी शिर्क फैला हुआ पूरी उम्मत जो शिर्क में नबी मुबतला आ हुई चुके है। हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। और आखिरी नबी हमारे जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा हाँ, ईमान है। हजरत और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे? तो ये क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, वो नहीं आएंगे? वो नहीं है ऑलरेडी तुम्हारा आ अकीदा? चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको अच्छा जिंदा एक मिनट आसमानों दे पे मुझे उठाया है नजीर और साहब, एक जिंदा मिनट दोबारा जिंदा भेजा उठाया है। वो लाइन कहाँ आर्ट लिखा हुआ है जिंदा आसमानों पे उठाए? अच्छा झूठे अकीदे लेकर आ एक मिनट जाते नजीर हो इधर। साहब, एक मिनट नजीर साहब। अच्छा ये जो लाइन आर्ट है मिर्ज़ा इंजीनियर वाले, इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं। तो नज़ीर साहब आप आखिरी नबी मानते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि जो कादियानी हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, क्या आप मानते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं आखिरी नबी हैं आप, अफजल नबी खातमुन नबिय्यीन है, सब नबियों तो से अफजल हैं, फिर ये आप पे क्यों बहतान लगा रहे आखिरी हैं नबी हैं। कि ये क्यों बहतान लगा रहे हैं कि आखिरी नबी आप नहीं मानते? भाई ये ऐसी फजूल बातें मैं कह रहा हूँ, अकीदे का पता होता नहीं है। आप पढ़ो जमात का की किताबें पढ़ो तो आपको समझ आएगी। और वक्त इमाम का मैसेज ये सुनो, कादियानी इमाम मेहदी की काफिर बात भी सुनो। हैं और मुनाफिकत भी इनके अंदर भरी हुई है। ये मुंह के ऊपर इस पे लानत भी भेज देंगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे, और बाद में दिल में कहेंगे नहीं नहीं हम तो आपको नबी मानते हैं आखिरी। ये इतने बड़े बेगैरत है। नहीं वो तो इसकी अभी वो ये जरा बता रहे इसकी हैं कि तालीम मिर्जा, देखो, एक मिनट ये नजीर साहब, इसका इस्लाम देखो, इसको ये सिखाया है मिर्जा इंजीनियर ने। मैं मेरे एक इस्लाम अकेडमी ने से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक यही एक सिखाया है कि जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में नबूवत का गालियां दावा निकालना ये करेगा, सिखाया इस्लाम ने आपको, रमजान में गालियां एक मिनट निकालो। एक मिनट भाई, एक इनने मिनट मैं मुझे दोनों को ये म्यूट करूं। सिखाया है और कि जो लाइन आर्ट, नबूवत का एक मिनट लाइन आर्ट, मैं दोनों की डिबेट मैं करवा रहा हूँ ना, गर्दन मैं उड़ा दो। मॉडरेटर हूँ, आप जवाब दें। उन्होंने कहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, आप उनका रद्द करें कि भाई मिर्जा इंजीनियर ने भी यही कहा कि कादियानी कादियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, आप रद्द करें। वो तो कह रहे हैं नबी मानते हैं हम आखिरी, अब क्या इसका रद्द करेंगे आप? ये गालियां निकालेगा बस, और क्या इसमें रद्द करनी है ये। अब आप बोलो, आप लानत पे जो बकवास है। करें वो लानत लानती, वो में पैदा जहन्नमी हुए है। और लानत सारे मरते तक करते रहते हैं ये लोग सब। लानत के अलावा इनके पास आप है क्या? मिर्जा साहब की कोई वीडियो बताएं, हवाला दें कि जनाब मिर्जा साहब ने जो कादियानी को दावत इस्लाह दी है उसमें उन्होंने क्या कहा है, बताएं जरा नजीर साहब को। नहीं आप इस पे लानत भेजो ये ना, फिर बैठो हमारे साथ, मैं तो तुम्हारे साथ मैं तो बात लख दी लानत भेजता हूँ, तुम मैं तो लोगों इन के दोनों पे लख दी लानत भेजता हूँ। गुनाह है। बहस करना भी गुनाह है। मुसलमान बस एक दूसरे पर लानतें डालो, लख दी लानत भेजता हूँ, लख दी नजीर साहब लानत बात भेजता हूँ, सुनिए, यही इस्लाम सीखा हुआ है। जो आता है गाली एक मिनट निकालता है, नजीर साहब, बकवास करता है नजीर और साहब, दूसरे को गाली। मेरे दिल की नजीर साहब ख्वाहिश है, बिल्कुल। मेरे दिल की ख्वाहिश ओ है यार कि एक मिनट मिर्जा यार आप मिर्जा इंजीनियर वाले साहब, आप इनको मिर्जा इंजीनियर की बताई हुई कोई दलील दें, इनको कादियानी का रद्द मिर्जा करें, आप गुलाम दलील नहीं अहमद दे रहे। कादियानी जिंदा होता तो मैं अपने हाथों से अपनी टट्टी उसको खिलाता, वो लो जी, कुत्ता ये मर चुका दलील है। है जी, ये दलील देख ले जी नजीर साहब, ये दलील देख ले मिर्जा इंजीनियर के मानने वालों की। लाइन मेरा साहब आप मेरा दलील दें, मेरा आपने मिर्जा साहब ने मेरी आपको बात क्या सिखाया है? ये लगता तो नहीं है ये लाइन मिर्जा साहब आपने इंजीनियर कैसे- लाइन साहब आपको मिर्जा ईसाइयों के साहब ने क्या साथ, सिखाया है? हिंदुओं के साथ, कादियानियों का रद्द कैसे करना है? फॉलोअर है। इसराइलियों ये के लगता तो साथ नहीं है हमदर्दी इंजीनियर कर का। सकता हूँ मैं, कादियानी के साथ मैं और भाई वो कहता है कि कादियानी जो है वो यहूदो नसारा से बेहतर हैं, आप कह रहे हैं मैं उनके साथ कर सकता हूँ इनके साथ नहीं। यार कैसे ठोक रहे हो आप ठीक मिर्जा है, वो इंजीनियर तो के? खुलकर सामने आते हैं ना कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं। ठीक है, ये दुश्मन ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो नहीं और भाई, ये लाइन साहब देखो, दलील मेरी से बात सुनो। रद्द करें। नजीर साहब ये बंदा आपके सामने इस्लाम के टिक अंदर नहीं घुस सकता है। के अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। नहीं ये मुझे नहीं लगता कि इनका मिर्जा मजाक इंजीनियर का उड़ाते हैं। फॉलोअर है, ये पता नहीं बना हुआ है। एक ज्यादा जनाब कादियानी खतरनाक और अहमदी ने बदतरीन कौम है। एक कादियानी अहमदी ने जनाब मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले से दलील तलब की है, और जनाब वो लाजवाब है, मिर्जा इंजीनियर के मानने वाला लाजवाब है। अंदाजा लगाएं वो ये- दलील क्या दे रहा है कि मैं जी टट्टी खिलाऊंगा आपको, लो ये दलील है जी। हाँ ये अच्छा मुसलमान है भाई, नीचे ये नीचे पढ़ लो मुसलमान है कमेंट, माशाल्लाह। नीचे कमेंट पढ़ लो बंदों के। वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने गाली नहीं दी, वो भी कह रहे हैं वो लैट्रीन में लाहौर में मरा था 1871 में। उसकी दलील आपने रद्द कर दिया, बस रद्द हो गया इसका बस। तो मैं ये मेरा ईमान है। भाई ठीक है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, मिर्जा इंजीनियर कहता है
کہ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ وہ ٹٹی میں مر گیا اور لیٹرین میں مر گیا, یہ ایویں پھیلاتے ہیں. تم لوگوں نے ایسے رد نہیں کرنا بھائی. تم کیسے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہو کہ ایک بھی دلیل نہیں دے پا رہے؟ نہیں نہیں, صاحب مجھے آپ نہیں کا مرزا پلڑا بھاری انجینئر ہے, کا بھاری ہے اسٹوڈنٹ پھر بھائی, بھی آپ کا علمی لوگ پلڑا ہوتے ہیں, یہ تو بھاری ہے. جاہل ہے کوئی, نہیں یہ تو سنتا, مرزا مجھے انجینئر صرف لگتا اتنا نہیں پتا ہے. ہے کہ یہ جو اپنا قادیانی کا موقف لے کے بیٹھے ہیں نا, آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کتے کی تصویر اتارے, ویسے آپ گفتگو کریں. نمبر 1. نمبر 2, یہ سنی شیعہ اور یہ وہ ان فضولیات سے باہر نکلیں اور ملک پاکستان کی خدمت کریں. جو نوجوان نسل ہے ان کو آپس میں جوڑے توڑے نا. ملک پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے سر آپ اس سے لوگوں کی بڑے مرزے کی کا وجہ رد سے. کیسے ہو رہا ہے؟ اس اور یہ یہ آپ جو کی جو اچھا دلیل ملک ہے. تباہ, بتایا ہوا ہے, اس یہ کی تو آپ تمہارے جیسے پروموشن کر رہے جاہل ہیں, ہیں تو آپ ملک خود تباہ ہو گناہگار رہا ہے ہو نا. رہے ہیں. ہاں, جو آپ جیسے جاہل اس ملک میں ہیں تو ملک نہیں, کو اس تباہ کتے کر کی رہے ہیں نا. تصویر اب کیوں لگائی ہے عثمان بھائی آپ ویڈیو لگائیں ذرا. اچھا لائن صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں لیکن قادیانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں جناب یہودوں نصارہ سے بدتر نہ کہو قادیانیوں کو, اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں اس الفاظ کی, اگر اس نے کہا ہے. اچھا اس نے سنا ہی نہیں ہے, صرف یہ کیسا مذمت ہی کریں انجینئر گے؟ کا فالوور ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو ایویں بنا وہ ہوا, میں مجھے لگ کون رہی سا ہے ایویں ڈرامے باز ہے وہ کوئی. بھائی مرزا میں اس انجینئر کے کا فالوور نہیں وہ ہے. بھائی سن لو, اس کے دماغ میں سینسر لگاؤں کہ وہ کیا بات کرے گا تو میرے تک پہنچنی چاہیے. لاکھوں تیرا بیان ہو جتنا گئے جو میں گندا نے نہیں دماغ ہے سنے اس اتنا کے. مرزا انجینئر کا تو نہیں ہے. وہ تو پھر بھی صاف ذہن کا, تو بہت گندے دماغ کا ہے. تو اس نے بھائی تیری تربیت آپ کی ہے. لوگ یہ تو قادیانی ہے, ٹھیک ہے, اچھا آپ لوگ لائن تو صاحب مسلمان بھی ہیں. لائن صاحب میری آپ بات سنیں, چھوڑیں کیوں کرتے لائن ہو صاحب چھوڑیں ذرا. تصویر؟ لائن صاحب میں آپ کو حل بتاتا ہوں, میری بات سنیں. مرزا انجینئر کہتا ہے کہ قیامت والے دن مسلمانوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے اور قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب کی؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, ان کے بھی چمک رہے ہوں گے لیکن ٹٹی سے. یہ دیکھیں, یہ تو یہ یار مسلمان ہے, یہ نذیر مسلمان ہے صاحب, جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. نذیر صاحب اقبال نے کہا تھا نا, دیکھیں, یہ وہ نذیر مسلمان ہے صاحب, جسے دیکھ کے شرمائیں یہود. نذیر ہاں صاحب جی, آج جناب دیکھیں, ان کے مرزا چمک رہے ہوں انجینئر گے کا فریش فالوور ہے. ٹٹی منہ. ایک منٹ, اچھا میں مرزا انجینئر کا فالوور ہے, مرزا انجینئر کا ماشاءاللہ فالوور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چمک رہے ہوں گے. اب دیکھو استاد کوئی پڑ گیا, یہ کہتے ہیں نا کتا مالکا نو پہ گیا, دیکھ لیں. اچھا یہ میں دیکھا, میں اب وہ بتاتا ہوں. انہوں نے پوچھا تھا نا بھائی کہ کیا ہے عقیدہ, میری کیا بات ہے. سنو. اگر کوئی ہمارا مولوی عقیدہ یا کوئی سنو, علماء ہماری بات کرام سنو کوئی کہ ہم غلط کیا بات مانتے کرتا ہیں. ہے تو غلام تھوڑی ہے کہ اس کی بات مانے. تمام جو ہمیں تو سننے قرآن والے و لوگ, حدیث ایک کو منٹ دیکھنا ہے, سنو پہلے. یہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ سنو, عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم آخری نبی بولو, الانبیاء ہے. ساتھ آخری اور سنو, اور سب سے بڑھ کر ہے. آخری اب نبی بعد بولو اس کے کوئی ساتھ. نبی. ایک اچھا منٹ سنو نا. عثمان بھائی میرے خیال سے نذیر صاحب کا نا موقف آ گیا ہے. ہم ذرا لائن صاحب نہیں, سے نذیر تھوڑی سی صاحب نے گفتگو یہ کرنا تو چاہ کہہ رہے ہیں. دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور ساتھ آخری لگا ہاں دیتے جی, تو کتنی پیاری بات ہو جاتی. بالکل ایسی ہے, لیکن تم بالکل آیت بالکل ایسی ہے. بناؤ اچھا گے, عثمان بھائی میرے خیال تم سے خنزیر ہو. نذیر صاحب کو تھوڑا سا نیچے اگر وہ تھوڑی دیر بٹھا دیں تو ہم لائن صاحب کو جو انہوں نے دو موقف اس کے مرزا جونیئر کے ریجیکٹ کیے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ہاں جی, بس گالیاں نہ نکالیں ان کو. جب مرزا نہیں انجینئر کو گالیاں نہیں جس کا نکالیں گے, بھی ہو, کوئی گالی نہ گالیاں نکالے. سارے ٹھیک سے گالیاں بات میں کرو. دوں گا. گالیاں میں ہم یہ مرزا دو قادیانی ہیں جو دو گالیاں نکالیں. سر ہم کوئی ہاں, مرزا یہ قادیانی جو یہ گالیاں ایسے نکالیں گے. سنو, یہ مسلمان ہے, گالیاں جتنا ہمیں اسلام ایک میں منٹ درود لائن شریف نہیں پڑھنے گالی کا صاحب, لائن گالی. صاحب ثواب ایک منٹ, ملتا لائن ہے صاحب نا, ایک منٹ. جتنا ہمیں ہم درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس پہ لعنت بھیجنے کا ملتا ہے, الحمدللہ. اچھا, گالیاں دینے کا نہیں تمہیں نہیں ویسے ثواب ہاں ملتا ہے لوگوں کو. ہاں, چلو میں اسلام. ادھر 50 بندوں کے سامنے یہ اقرار کرتا نذیر ہوں صاحب کہ دیکھیں, ایک میری منٹ بات لائن سنو صاحب مائک میوٹ کرو ذرا. اسلام کی بھائی. تعلیم نذیر ہے کہ صاحب گالی نہیں بھائی جان دینی ہے. ایک منٹ, بھائی جان ایک منٹ, میری چھوٹی سی بات. میں ان سارے ہاں بندوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی دینے سے, اس پہ لعنت بھیجنے سے اگر میں جہنم میں بھی چلا جاؤں تو اور مجھے یار کوئی تو انہوں چھڈ, ایڈا تو ایڈا اور چپ کر, ایڈا تو مجاہد ہے. ادھر مرزا انجینئر جڑا وا وہ کہہ رہا انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے, تو ادھر دی گل نہیں کردا. تو وہ کہہ رہا کہ تسی انہاں نو نہ کہو کہ تسی لیٹرین چ مریا سی, او تو انہوں بار بار یہ گل کر رہے ہیں. تو مرزا انجینئر دا فالوور تے لگدا ہی عثمان نہیں ہے. بھائی, تو استاد ایویں جی روپ دھاریا ہے.
تو रूप अली धारे अली हैं भाई, वो भी मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर अली को डिलीट करना इंजीनियर, आई लव यू। लो उस्ताद जी आई जरा लव यू। आज सुनो जी, आज सुनो जी, उठाएं। आप ये कोई ये वैसे जाहिल है, कोई इसको छोड़ दो। जिसको बात कोई तरीका, कोई इंसान हो जिससे बात करनी चाहिए, कोई इंसान ऐसे बात करे, कोई तमीज वाला बंदा हो जिससे बात करो। आना नहीं है, और इधर ही रहिएगा। तमाम जिसको मुसलमानों तमीज को सही जो है है, ना, तमाम मुसलमानों को जिसने मैसेज है कि वो जमात अहमदिया का जिसने मुताला खुद करें, खुदा जिसने ताला की खुद बनाई टट्टी हुई खाई जमात है है। और आपके दिमागों में टट्टी भर गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो ये ठीक है। बस ये रमजान में इसके दिमाग में टट्टी घुसी हुई है दिन रात। ये ठीक है, टट्टी में रहते हैं ना, तो ये इनका दिमाग जो है ना हर वक्त ये टट्टी। ये उसने सुनिएगा टट्टी जरा, खाई ये है, सुनिएगा। वो मर गंदे गया, वो लोग, नशा भी गंदे टट्टी का लोग। करता था। लोग मैं आहिस्ता मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मुसलमानों से जो नीचे सुन रहे हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ। अब जरा कादियानी नजीर साहब एक मिनट माइक म्यूट कीजिएगा। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। आई लव ये यू। चीज उनको यहूदो नसारा से बेहतर कर देती है। ये देखें कादियानी या कुरान को मानते हैं। अब अमल करने की बात तो वो बरेलवी देवबंदी वाले हदीस शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, निटी ग्रिटिस में जाए तो उनमें भी कहीं कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूदो नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज, एक यहूदी और ईसाई को दीन इस्लाम समझाना ज्यादा आसान है या एक कादियानी को कि जो पहले से नबी इस्लाम को और कुरान और हदीस को मानता है? जो जी उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले और नज़ीर साहब मिर्ज़ा कादियानी साहब के मानने वाले दोनों का आपस में मुनाजरा करवा रहा था मैं। और जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लाइन साहब टट्टी की हैं, पैदावार। जो लाइन साहब हैं वो कोई दलील नहीं दे रहे, बल्कि उल्टा उनको गालियां दे रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि वो वॉशरूम में मरा। तो मिर्जा जूनियर जेल में साहब के तो जिधर मरा उधर ही कहना है ना। मुरीद ने तो ये दलाइल मैंने काफी इनको दिए कहा होंगे, था। क्योंकि जी ये तो बिल्कुल। बड़े दलाइल देती होती हैं। मिर्जा सीनियर के मानने वाले ने अगर दलाइल नहीं दिए तो मिर्जा अली अली भाई ने जो है ना वो सब को नंगा कर दिया है। अली भाई आई लव यू, और कादियानियों पे लानत अच्छा है। लाइन साहब मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे, जरा तहजीब से गुफ्तगू करनी है। अच्छा मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। लोधी क्या हाल उस्ताद है? मोहतरम जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम लाइन साहब जो मिर्जा जूनियर के शागिर्द हैं, अच्छा इन्होंने एक तो ये कहते हैं कि मैं यहूदियों के साथ तो बैठ सकता हूँ लेकिन अच्छा। कादियानियों के साथ नहीं बैठ सकता। हम्म ठीक है, यानी कि ये यहूदो नसारा से बेहतर ख्याल नहीं करते, जबकि मिर्जा साहब बेहतर ख्याल करते हैं। अब मिर्जा जूनियर जेल में साहब तो कहते हैं कि कादियानी जो है ये यहूदो नसारा से बेहतर है। जी, तो ये लाइन साहब अब इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, आप नदीर साहब आप मौजूद हैं? अगर उन्होंने ये कहा तो मैं कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ नदीर उसकी। साहब आप मौजूद हैं? जी जी मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाल है? से ठीक है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ले लें, मैंने जाना है जरा, मैं जल्दी में हूँ प्लीज। यार काली ते मैनू भी बड़ी है। सर जी प्लीज प्लीज एक ਤੁਸੀਂ सेकंड, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ। एक सेकंड बस। मैं कादियानियों की रोड पे था अभी, अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं, मैंने उनसे एक सवाल किया कि वो कहते हैं कि ना नबूवत जारी है, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार नबूवत अगर जारी है तो क्या मैं नबी बन सकता हूँ? तो मैं सीवी कहाँ जमा कराऊँ तुम लोगों के उसमें? तो उन्होंने मुझे गालियां शालियां दे के तो नीचे उतार नहीं, दिया। असल में आप देखें, आप नबी इस तरीके से बन सकते हैं कि आपको जनाकारी करनी पड़ेगी, शराब नोशी ये हाँ। करनी पड़ेगी। एक मिनट सुन तो लेना भाई, आपको टानक वाइन मंगवाएं कहीं से, पाकिस्तान से तो पता नहीं आजकल नहीं मिलती, बाहर के मालिक से मिल रही है, वो कोई डाले मंगवाएं 2-4, तो रजूरियत की ताकत का इजहार भी करवाना पड़ेगा। मुफ्ती साहब आप तो इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह की नहीं तौहीन नहीं, कर मैं रहे हैं। नहीं तौहीन नहीं कर रहा, मैं तो इनको नबी बनने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो माशाल्लाह आए हैं। माशाल्लाह, नबी ऐसे बनते और हैं। यार ये अल्लाह आप का ये है, अपने नबी मुल्क एक के मिनट हालात रुके, बेहतर करवा लो सुनो ना, लो, ये हमारे मुफ्ती मुल्क साहब में ठीक हो जाए। मुफ्ती साहब एक कुछ मिनट तो शर्म रुकिए हया जरा। कर लो, ओहो, कोई तो इस्लाम का खौफ खा लो। यार, खालिद भाई माइक म्यूट करें, मुफ्ती साहब की बात हमारे सुनिए। मुल्क में ठीक हो जाए। गलते करते हो यार। माइक म्यूट करें, जब मुफ्ती साहब बोल रहे हो उस वक्त खामोश रहा करें। लाइन जो साहब भी बोलता है उसको नीचे उतार दे, उसको मैंने नीचे उतार मुफ्ती दे। साहब से सवाल किया, आप लोग एडमिन हजरात जो बोलता है ना उसको नीचे उतार दे। अच्छा,
तो अगला तरीका ये है कि एक मर्तबा अफराद भैया आपको औरत भी बनना पड़ेगा और रजूलियत की ताकत के इजहार के बाद फिर आपको हमल भी ठहरेगा। 10 महीने का काम बकवास कर रहे हैं ये, कुरान के खिलाफ बकवास, अल्लाह यार के नजीर खिलाफ साहब एक बकवास मिनट, कर मैं रहे हैं। अफराज साहब से बात कर रहा हूँ यार। एक नहीं, नबी बनाने का ये तरीका अल्लाह ने बताया। ये तरीका है, एक मिनट मैं बताता हूँ। भले ये आप अल्लाह पर बोतान बांध रहे हो। नहीं तो नहीं यार एक मिनट नजीर साहब आपसे बाद में बात करते हैं। कादियानियत के नहीं, आप मुताबिक गंदी बता रहे हैं। यार माइक म्यूट अब अल्लाह करो की यार थोड़ी देर। नीचे फेंके। ओ भाई भाई वो माइक म्यूट करें, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं। यार अफराज साहब अफ्ताब आप भी तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, थोड़ा सुने। बात नहीं सुनी, इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं अफराज साहब को जवाब दे रहा हूँ। नदीर साहब आप नहीं, आप चले गए हैं क्योंकि नदीर साहब को पता है ये नबी बनने का जो तरीका है ना, उनको पता है, वो इसलिए चले गए हैं। अच्छा, तो अफराज साहब आपके इल्म में इजाफा कर दूं, क्योंकि वो कादियानी को तो पता है, क्योंकि ये सारे काम मिर्ज़ा कादियानी ने किए थे, तो उनको पता है कि नबी बनने का क्या तरीका होता है। तो नबी बनने के लिए भाई रजूलियत की ताकत का इजहार करवाना पड़ेगा। एक बंदा भी स्पेशल रखें जो जब आप सजदे में जाएं तो पीछे से आके आपको उंगल दे। तो हाँ, नहीं ये जरूरी है भाई, मस्त है भाई, लाजमी। और आपको गरारा पहनना पड़ेगा, चूड़ी पजामा पहनना पड़ेगा, पूरे घर की चाबियां अपने नाले के साथ बंध देंगे आप। जूता आप उल्टा पहनेंगे, सीधे पाँव में उल्टा जूता, उल्टे पाँव में सीधा जूता, और जुराबें भी उल्टी पहननी है। काज के जो बटन है ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर। तो ये सारे छमक छलो बन के तो आपको पूरे अपने घर का एक गश्त काटना पड़ेगा। ते अगर तो आपको टट्टियां ना लगी हो तो जमाल गोटे की 2-4 गोलियां अपने अंदर फेंके, ताकि दिन और रात में 100 दफा टट्टी भी उतर आए। समझ आई कि नहीं? तो ये नबी बनने का तरीका है। इस प्रोसेस को अगर आप ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। पूरा कर सकते हैं तो कदम बढ़ाइए जनाब, हम आपके साथ हैं। ये मैंने नहीं नोट नहीं, साथ ये भी बताए ना कि ये वाले नबी, ये जो जिन्होंने बनाया हुआ है, सर वही उन्हीं की बात हो रही है। दूसरा मुफ्ती साहब, आप लोगों को जोड़ना सीखें। पाकिस्तान में अफरा नहीं, पता है क्या? आप अम्मी ना बने, आप अम्मी ना बने, माइक म्यूट करें। बाहर आप निकले, आपसे कोई सारी बात बोलन करने के को तैयार बेचे नहीं ते होगा। फिर काम ते खराब हो जाएगा ना। वो आपकी यार जी एक बात मिनट, है। ओ भाई सज्जन सबर ते कर ले, साह ले ले यार, मैं मोहम्मद और अली मैं भाई बस वो नहीं चल रहा सही थोड़ा सफाई करता है मौलवियों ओ की। मियां यार एक मिनट, मैनू कोई यार मैं ते अजे आया ही कर्मा लिया, तू ते पै गए हो यार रल के। की कर दियो पे अजे सुनते लगो, थोड़ा साह लेदा हुंदा है। नहीं वो देखे कादियानियों को के साथ तो वो चले गए हैं, कादियानी साहब आपके जो बड़े भाई हैं वो तो चले गए। तो अब मिर्जा जूनियर जेलमी की तरह सुनो यार, साह लेदा हुंदा है। जरा माइक म्यूट रखो, मिर्जा जूनियर जेलमी की सुन लो। और सुन ले यार, मिर्जा जूनियर दी सुन ले यार, की हो गया? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप, जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए, प्लस हाँ जी इशारे दिए हैं, उसने कोई नबूवत का दावा को नहीं किया। तो ये आपके बाबा जी कह रहे हैं, बताइए जरा। वो सारी साफ जगह वो छोड़ के गंद पे ही बैठती है। तो आप जो अली भाई जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं जी, अली भाई कह रहे हैं कि मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया था। नंगा किया वो तो आप बात नहीं बता रहे। नहीं बिल्कुल ठीक हो गया। गले बंद हो गए, आपके चंदे बंद हो गए। वो हक खतीब क्या कर रहा है? लोगों को लूट रहा है, 11 अरब की प्रॉपर्टी बना ली है, उसका क्या कहेंगे? उस पे लानत भेजे जरा। अच्छा नहीं, तो ये मिर्जा जूनियर जेलमी का क्या करना है? वो तो कह रहा है जी मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा किया ही नहीं था। सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलने वाला सिखाया हमको। सहाबा कराम कौन से हैं? मिर्जा जूनियर जेलमी तो कहता है मेरे स्टूडेंट मेरे साहबी हैं। ये सुने जरा, ये सुने। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिसका नबी वीडियो दिखाए, वीडियो तो साथ हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम भाई मेरे मुफ्ती साहब की मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल,
माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, वो पूछना ये था कि आपका शुमार मिर्जा जूनियर जेलमी के सहाबा में से कहाँ पे होता है? अशरा मुबशरा सुन ले यार साहब ही लै मरज़ैया तू एक मैनू जानबुझ के जेड़ा मजबूर कर रहे हैं कि तेनू मैं तेरी जुबान दे विच गल करा। चुप कर, बंदे दा बच्चा बन, चुप करके गल सुनी दी हुंदी है, साह लईदा हुंदा। अच्छा, तो ये जो कह रहा है मिर्जा जूनियर जेलमी, तो आपका दर्जा कौन सा है मरज़ई जी, वो जरा बताना। 313 में शामिल हैं, अशरा मुबशरा में या हकचार यार में, या जो बढ़ते जा रहे हैं उनके अंदर शामिल हैं, किस दर्जे पर आप फायज हैं? बनाए अब बताएं जरा, माइक पट्टो जरा माइक जी। हुन बोलन दी बारी है, हुन चुप हो गए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की और मेरी बात हो रही है तो होस्ट आप मुझे क्यों म्यूट कर रहे हैं जनाब? अच्छा, क्या कौन से दर्जे पे फायज हैं आप? मिर्जा जूनियर के सहाबा में से कौन से दर्जे पे फायज हैं? मैं किसी दर्जे पे फायज नहीं हूँ। मैं अल्लाह फिर ते उन्हें तो लित्तर मारिया जो उन्हें कहा निकल जाओ इथों। आप लोग कहते हो कुरान नहीं, को उसने तो फिर आपको लित्तर मार के निकाल दिया है। को हाथ नहीं लगाना, काफी नहीं, हो उसने जाओगे निकाल दिया आपको, वो कह रहा है निकल जाओ इथों, जेड़ा इन्ना दर्जियां च फायज कोई नहीं, ओ कोई भी नहीं। ये कहाँ लिखा है? ओ जाके ना वो तलाश करे अपनी माँ दे 4 शोहर, वो भी ये कह रहा है। अगले की वो भी कह सुन रहा है ले, कि जो आप किस इस तरह मेरी के लिस्ट मुफ्ती में हैं भाई? शामिल नहीं है, वो अपनी वालदा के 4 शोहर तलाश करे। आप किस तरह के वो मुफ्ती कह हैं? रहा आप है यार, लोगों की ये ले बात नहीं सुनते। अल्लाह, किस तरह कह रहा है, ये लो 4 शोहरों वाली भी सुन लो चुप करके। भी आजाद कर कहती है हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो मोहम्मदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। हाँ बस ठीक है। तो अगर आपकी वालदा ने मांग लिए 4 शोहर, तो मिलेंगे कि नहीं, बताएं जरा मरदई जी। हेलो, नेड़े हो जे मुफ्ती साहब जी 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 ये फरमाइए। है कि आप मुझे ये बताएं, कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि आपने खुद कुरान को हाथ नहीं लगाना? नहीं, कुरान पाक में ये नहीं लिखा कि औरत को 4 शोहर मिलेंगे, ये इन्हें गप मारी जे। आप लोग क्यों लोगों को लड़ा रहे हैं, गुमराह नहीं, कर रहे मैं हैं? नहीं लड़ा रहा, मैं तो सुलह करा रहा हूँ कि सुलह और सफाई एक नाल। दूसरे को अब लोग लड़ कत्लो पड़े हैं गारत कि ये भाई क्यों है? अब देखिए मर्जियों पाकिस्तान की में माओं कत्लो का हर गारत बंदा क्यों है? चाह रहा है कि इस्लाम मैं के शोहर नाम पे। बनूं, हर बंदा तो चाह रहा है मुफ्ती कि साहब मैं मेरा शोहर जवाब बनूं, दे लेकिन रहे मैं तो भाई। सुलह सफाई करवा रहा हूँ कि मर्जई खुद बताएंगे कि मेरी माँ के शोहर कौन कौन से हैं। मैं तो सुलह सफाई करा रहा हूँ, मैं लड़ा नहीं रहा, मैं बिल्कुल सुलह सफाई और मसाल हत करवा रहा हूँ जनाब। तो आप खुद ही बता दें कि आपकी माँ के 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं, और अगर मिलेंगे तो वो कौन कौन से होंगे। सुलह सफाई नाल दसना जी, जी लड़ाई ना होवे, नहीं तो लड़ाई तो हो जानी है ना भाई। 95% मुसलमान और है। 95 आपस नहीं में क्यों लड़ यार, रहे सिर्फ हैं? 4% आपस में चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं? ओ कत्लो गारत यार मुसलमान क्यों कर 95 रहे नहीं हैं? हो भाई, क्या आपकी दीन के वालदा ने नाम पे। 95 मांगने हैं शोहर कि 4 मांगने? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 95 उस वो 4 की बात कर रहा, आप 95 की बात कर रहे हैं। मुसलमान है, तो दीन के नाम पर आप क्यों उनको भाई लड़वा रहे हैं? आपकी अम्मी जान कितने शोहर मांगेंगी बताएं? यार आप तो मुफ्ती मुझे लग ही नहीं रहे। यार बता, नहीं मैं नहीं लग रहा, वो मिर्जा जूनियर तो लग रहा है ना, वो कह रहा है, वो कह रहा है मर्जियों की मांग को 4 शोहर मिलेंगे स्टेज जी। का लग रहा है। मुझे आप ये बताएं कि आप मुसलमानों को मर्जी चुप क्यों करी लड़वा जरा रहे हैं? यार, तेरी टक्कर दा कोई बंदा मैं लभना वा पैनल च केड़ा बैठा है। लोधी गल कर यार, लोधी गल कर जी। मुफ्ती साहब मुझे मौका दें एक बार प्लीज। जी आफ्ताब भैया आप बात कर लो। नहीं, वो लाइन भाई से बात करने का यार। जी करें करें करें। लाइन भाई मेरी बात सुनिए। कोई नहीं है। नहीं अफराज साहब आप जरा चुप रहे, लोधी बात करें भाई मर्जी से। लाइन जी एक मिनट। अच्छा लाइन साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब ने तकरीबन कोई 10 से ज्यादा दफा आपसे सवाल पूछा है। या तो आप कहते हैं मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरा जो है वो जनाब झूठ बोल रहा है,
ठीक है ना। आप बजाय मिर्जा को झूठा कहने के आप मुफ्ती साहब को कह रहे हैं, हालांकि मुफ्ती साहब तो उसकी वीडियो चला के आपसे सवाल अच्छा, कर रहे वो हैं मुफ्ती कि आपकी बातों को कितने मर्दों की ख्वाहिश है। तो वो जाते नहीं फिर डिबेट के लिए। और सारे जो मौजू का चाह रहे हैं ना, उस पे मुफ्ती साहब की, मुफ्ती मुनीपुर रहमान साहब की बात करते हैं भाई वो बुलाता है तो फिर जाए ना मुनीपुर रहमान, उधर जाके देखें मेरी बैठे। बात सुने, आपने पहले कादियानियों रहमान से कि हमारी हार जो है वो अहले सुन्नत की लाइव साहब हार है। देखें, ऐसे कोई आप मेरे से वक्त तय कर लें, फिर इस तरह तो कोई बात ना हो। एक दफा आप जनाब मुफ्ती मुनीपुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये जनाब जो कहाँ पे मुफ्ती बात बने ले हुए जाते हैं हैं। टिकटॉक पे बैठे इस हैं, तरह ये मसले नहीं 5 हल होंगे। मिनट में अली भाई के आगे। देखिए आपसे 10 दफा रुक के सवाल भाग किया रहे हैं। मुफ्ती साहब ने, लाइन साहब बात सुने, आपसे 10 दफा मुफ्ती साहब ने सवाल किया है कि मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरे की वीडियो चलाई, हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। वो कह रहा है कि जनाब मर्जियों की माओ को जनाब एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश हो तो रोलाई कोई नहीं, और जब वो चाहे जनाब वो औरत से मर्द भी बन जाएगी, ऐसा ऑटोमेटिक स्विच उनके साथ लग जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक स्विच कहाँ से आपने खरीदा है, कोई बताएं, कोई इसके ऊपर नेरा डाले ना आप थोड़ा सा। जी लाइन साहब, भाई आप लाइन मेरी साहब। बात का जवाब नहीं देंगे तो मुझे बैठने जी का फायदा नहीं है। देखे ना, आपने पहले कादियानियों के सामने भी मोचनी भी कराई मिर्जा साहब की, ठीक है ना। अब आप जनाब यहाँ पे भी आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कादियानियों की बहन को लाने दो यार, उनका नाम क्यों ले रहे हो अच्छा आप? ठीक हो गया। अच्छा नहीं, कादियानी आप कह रहे हैं कि उनको, मिर्जा साहब कह रहे हैं यूदों नसारा से बात ना कहो, आप कहते हैं मैं जनाब यूदियों के साथ बैठ सकता हूँ, कादियानियों के साथ नहीं बैठ सकता। अब आप बकवास कर रहे हैं या मिर्जा जूनियर बकवास कर रहा है, दोनों में से एक सच्चा है। कोई भी बकवास नहीं कर रहा। अगर उसने ऐसा कोई अल्फाज उसने किया तो मैं मजम्मत करता हूँ उसकी। वो भी इंसान मजम्मत है, नहीं, गलती ये हो मजम्मत जाती है। मुंह से बहुत कुछ आप निकल कह जाता रहे है। हैं जनाब, एक तरफ आप कहते हैं मैं बगैर दलील के उनको काफिर मानता हूँ, दूसरी तरफ मिर्जा जूनियर की आप बात भी नहीं मान रहे। अच्छी बात मिर्जा- वो कहता जी उनके अजाए वजू चमक रहे होंगे, और आप फिर भी भाई- आपके अंदर चुलबुल नहीं हुई। भाई मेरी बात सुने, अली भाई जो है वो इतने अली भाई की famous बात हो कर रहा हूँ। चुके हैं और उनकी जी बात जी बहुत इतनी- फेमस है जनाब, वो मरीख तक चले गए ने, उन्होंने तबलीग ना मरीख से ऊपर प्लूटो तक चलेगी उनकी तबलीग। मानी जाती है कि इस तरह के 50 मुफ्ती भी आ जाए उनकी कोई वैल्यू नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, 50 बंदे तो शायद कोई नहीं, 50 बंदे थोड़े कह रहे हैं आप। लाइन भाई मेरी बात सुने। आप हक खतीब जैसे ड्रामे जो है ना नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, हक खतीब ही देखे ना, हक खतीब की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरा साहब की। नहीं होगी क्योंकि वो आपका जो है वो साथ जो बैठने वाला है। अच्छा चले, मैं अगर हक खतीब पे लानत डालूं तो फिर आप डालेंगे उस पे मिर्जा जूनियर पे? मैं उस पे लानत नहीं डालता क्योंकि वो क्यों नहीं मुसलमान है। डालते? मैं नहीं लानत डालता। अच्छा मैं भाई, क्यों एक मिनट डालूं? बात सुनो, देखो हक खतीब ने तो नहीं कहा कि भाई मिनी गॉड बन जाएंगे मेरे मानने वो वाले गुनाहगार और उनकी जरूर है। औरतों को एक से वो ज्यादा शोहर मिल जाएंगे। जवाब दो उसका जिसने कहा है उसको, उसने आपकी औरत जी लोधी भाई अब करे बात। भाईजान मैं भाई से वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान है, वो जहन्नम में अपने हिस्से के लितर खाएगा फिर जन्नत में जाएगा। हार्ट भाई मेरी हक बात खतीब। मेरी बात एक मिनट, ये स्टेटमेंट इनकी रिकॉर्ड करने थे मुझे। आफ्ताब भाई एक मिनट जरा, आप तराज, आपका नाम बड़ा मुश्किल है जी। तो ये आप मैं स्टेटमेंट किसी- लाइन साहब अभी क्या दे रहे हैं कि मिर्जा जूनियर पहले जन्नत में जाएगा, फिर लितर खाएगा, फिर जन्नत में जाएगा, ये कह रहे हैं आप? मैं हक खतीब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पहले दोज़ख में जाएगा, फिर लितर खाएगा, फिर जन्नत में जाएगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको अथॉरिटी किसने दी है, आप किसी को जन्नत दोज़ख बांट रहे वो हैं? नजर आ रहा है ना, लोगों को लूट रहा अच्छा है। नजर आ रहा है, तो ये मिर्जा जूनियर का नजर नहीं आ रहा आपको? वो नबी वो- नबी करीम सल्लल्लाहु मिर्जा अलैहि जूनियर का वसल्लम नजर नहीं आ रहा गरीबों आपको? को लूट आप रहा है। देखें एक वो बंदे के ऊपर दीन को हुक्म इस्तेमाल लगाने को कर रहा है। तैयार हैं। लाइन साहब मेरी बात सुने, आप एक बंदे के ऊपर हुक्म लगाने को तैयार है, दूसरे बंदे को आप जनाब पतली गली से साइड पे निकाल रहे हैं। नहीं निकाल रहा। अगर मिर्जा नहीं निकाल रहे हैं ना, वो कह रहा है जनाब, मेरी बात सुने, वो कह रहा है कादियानियों के जाए वजू चमक रहे होंगे, क्या चमक रहे होंगे, आप बताएं मुझे। बिल्कुल चमक रहे होंगे, पहले कहा तो है मैंने टट्टी से। टट्टी से लेकिन फिर मिर्जा जूनियर क्यों कह रहा है कि वो जनाब उनके चमक रहे होंगे? उसने भी यही कहा है, आपको क्या? गलतफहमी हुई है। उसने क्या कहा, टट्टी से चमक रहे होंगे? बिल्कुल। आपको दोबारा वीडियो सुना दें आपको, मेरा ख्याल है मिर्जा जूनियर की बात जो है वो आपके ना दिमाग के अंदर ड्रिल नहीं हो रही सही तरह। भाई आपका आप क्या उसके नाम है? अल्फाज के अंदर अपना जो है ना वो मुंह डाल रहे हैं। सुमामा साहब, जी सर। शिया को, वहाबी को, जी, जी। सुन्नी को, नहीं नहीं, यहाँ पे देवबंदी शिया है, सुन्नी की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेरी सिर्फ बात बात हो रही है मिर्जा ये जितने छोटे भी है ना, मैं जूनियर किसी को मंगोल काफिर छोकरे नहीं की कह बात हो रही सकता। सर। मैं किसी पे सर, लानत नहीं भेज सकता, वो सारे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला अच्छा। उनको हिदायत का रास्ता दे। और नहीं अली हमें भाई तो की आप कह रहे थे बातें जनाब माने, हक मुझे खतीब पे पता लानत नहीं पड़ा। भेजिए, हमें तो आप बाबर कह रहे थे साहब हक को छोड़ दे। नहीं ना 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 लाइन साहब ऐसे नहीं, देखें दो मुंह वाली वो बात नहीं फलाने बाबे ने करनी। इशारा आपकी किया तो जुबानें पहाड़ कितनी है से पहले उतर चेक कराएं जरा। वो फलाने सर, बाबे आपकी ने जुबानें इशारा कितनी किया हैं? तो समुद्र उधर की तरफ चल पड़ा। वो फलाने नहीं नहीं बाबे ने लाइन साहब इशारा ऐसे किया, नहीं, सूरज ऐसे डूब नहीं, गया। ऐसे नहीं करना, मेरी बात सुने, आपके इस तरह आप की ना पहले चाहत शीशे के अंदर अपने खड़े हो, मानेंगे।
शीशे के सामने खड़े हों, अपनी जुबानें चेक करें कितनी आपके मुंह के अंदर, जुबान के नीचे मेरा ख्याल एक जुबान और है। अभी आप कह रहे थे जनाब हकती पे आप लोग लानत डालना है, अभी आप कह रहे हैं जनाब वो जन्नत में चला जाएगा लितर लुतर खा के, ठीक है। हाँ तो ना। मिर्जा जूनियर को आप साइड से निकाल रहे हैं पतली गली से, वो कह रहा है जनाब अगर कादियानियों के उसने जाए भी वजू गलतियां की हैं चमक तो रहे मिर्जा होंगे। को भी, मैंने कहा अगर उसने भी कोई इस तरह की गलतियां गुस्ताखियां की हैं हाँ, तो वो हाँ। भी उसको भी लितर पड़ेंगे, क्योंकि वो मिर्जा भी जूनियर इंसान को, है। मिर्जा हाँ जूनियर ना, यानी दोजख में जाके लितर खाएगा। बिल्कुल खाएगा अगर गलत करेगा हाँ कोई हरकत। बिल्कुल खाएगा जी, जी जी बिल्कुल खाएगा ये मुफ्ती साहब भी खाएंगे अगर ये लोगों को गुमराह करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई करेगा तो वो तो खाएगा ना, डेफिनेटली खाएगा। तो मिर्जा जूनियर अल्लाह का ताला ने कंफर्म हो क्यों गया ना वो कहा कि खाएगा। जहन्नम के अंदर मैं सबसे पहले इन मौलवियों को डालूंगा, ये अल्लाह जी का वही मैं फरमान अर्ज कर रहा हूँ ना, वही ना मिर्जा जूनियर वाले मौलवी जो हैं, ये ऊपर 2 मौलवियों की हमने तस्वीरें लगाई हैं, ये बिल्कुल दोजख के चक्कर लगेगा इनका और हमेशा रहेंगे मैं इंशाल्लाह। ना इस तरह आप अपनी दोजख पक्की ना करें, वो ऊपर वाला जो वो तो पक्का दोस्त की है, अली भाई को ना अच्छा ऐसे कहें। अच्छा, साद कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कहें साद। मेरी बात सुने, आपने यहाँ पे ना मुफ्ती साहब से नहीं मैंने नहीं, सवाल अली किया था। अली भाई को ना कुछ कहें, वो ऊपर वाले पे लानत भेजे, जहन्नम में मैं आपको लकड़ियां नहीं देता हूँ, भाई, तेल अली देता हूँ, अली उसकी अली भाई आपको जो है ना वो लायन की भड़काए। अम्मी का शोहर है दूसरा, अली भाई। ना यार ऐसे ना करें प्लीज। नहीं नहीं है चलो भाई, उसका बहुत शुक्रिया, फतवा है आप यार। बहुत शुक्रिया, आपकी तरबियत का पता चल गया, मैंने लाइन अभी भाई तक मेरी फतवा है बात भाई। पढ़ी सुने, नहीं थी। लाइन भाई यार आपने भी मुफ्ती साहब से आके सवाल किया था कि आप जोड़ की बात करें उम्मत की, तो मुझे मैं देखिए मैं खुद इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनता हूँ, मैं यहाँ बैठ के इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको भी सुनता हूँ लोगों को। सही है, इल्म है जिनके पास इल्म है, जो हमद आयत के लिए शहजादा बंदा है यार, यकीन करो मैंने इसकी वजह से 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी है। बे सुन तो ले, रसूलुल्लाह पूरी सल्लल्लाहु गल तो अलैहि सुन ले। वसल्लम नमाज ना शुरू करी ये वे तो कर बात ये है कि तुम अली को ना डिफेंड करो, ये मिर्जा अली को। कहने का मकसद ये है कि जो हक बात है ना, चाहे वो ये दे रहे हैं आपको मुफ्ती साहब या कोई भी दे रहे हैं वो करो। आप अपनी बात से फिर हो, आपने कहा कि यार जोड़ पैदा करें मुफ्ती साहब। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये जोड़ की बात करता है, ठीक है वो करता है फिरकों का कि जी फिरकों को नहीं मानते, चलो ठीक है नहीं मानते, लेकिन भाई वो भी तो जोड़ की बात नहीं करता ना। और बाकी जो ये इनके इख्तलाफात हैं ना, ये जो अभी आप बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं या देवबंद या लैलपुरिया भाई, इनके ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद मेरा भाई, इधर कोई कादियानी नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे नीचे जी, आप क्या बात भाई लाइन एट बात सुने, इनके इख्तलाफात बड़े छोटे अफराज हैं। भाई, एक मिनट अफराज भाई, उसकी कोई तवज्जो नहीं है आपकी गुफ्तगू के ऊपर, आप जो हाँ, मर्जी बस वो बोली सर जाए। डिफेंड कर रहा है, वो एक पर्सनैलिटी को डिफेंड कर रहा है, वो यहाँ पे बैठ के, और वो शख्सी इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती, ठीक है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द करके या उनके उसकी तरफ जाके तो एक शख्स को डिफेंड करोगे तो फिर मारे जाओगे भाई। देखें फराज साहब, बात सुने, इसके सामने मुफ्ती साहब ने भी, हमने भी वीडियोस रखी, मिनी गोड का किसने अकीदा दिया। हाँ। अभी उसने जो इसके सामने रखी बात, वो कहता है कि भाई इनकी, भाई मुसलमान तो इस अकीदे पे, इस बात पे लानत डालते हैं, इन्होंने तस्लीम कर लिया है। हम कहते हैं कि भाई ये बात आपकी औरतों के बारे में बताई जा रही है और ये शर्मनाक बात है, इसके ऊपर तुम लोग जो है या तो उस मिर्ज़ा इंजीनियर को छोड़ो या उसको पूछो जाके कि भाई तुमने हमारी औरतों के बारे में ये एक फतवा दिया है कि भाई औरतों को एक से ज़्यादा मर्द मिल जाएंगे, तो शर्म करो। लेकिन इनको ऐसे ही है ना अपनी औरतों भाई, के ये इस बारे में कोई आपने शर्म बड़ी नहीं आ खूबसूरत रही। बात की है कि ये जाके तहकीक करे, रिसर्च करे, हक बात है उसको माने। फराज भाई, जी जी भाई। ये आप उन मुफ्तियों को सुन के उस पर अमल करते हो, चलते हो, जो पाकिस्तान का जो रोयते हलाल कमेटी है, वो चांद देखने के लिए 50 मौलवी बैठे हैं और हराम का खा रहे हैं गरीबों का। ये वो मुफ्ती है। अंदाजा कर ले आप मुल्क को किस तरह लूटते हैं ये सबूत लोग। है। वो डॉक्टर तारुल कादरी, वो भी बाहर चला गया, चोर का बच्चा। वो मुझे जब वो लगता है आप अब गला दौड़ने के खाली चक्कर होता में है, वो भी हैं, वापस आ मदई जी। जाता है। अच्छा ये ये तारा जी, ऐसे ना जमीन है। करें। अच्छा ये अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मकतबा शिया से हो? बताओ, कौन? मकतबा फिक्र शिया से हो? मैं मकतबा किसी फिक्र फिरके शिया से से हो? नहीं हूँ, मैं नहीं नहीं, किसी आपके फिरके से नहीं हूँ, आपके वालदैन किस इन्हें फिरके अपनी से? दुकान खोली हुई है। मैं किसी अच्छा, भी आपके ना सुन्नी हूँ, ना भाभी हूँ, ना अच्छा शिया। अच्छा, आपके वालदैन कौन से फिरके से थे? उसके उनके आगे वालदैन कौन से फिरके से थे? मैं अल्लाह ताला के अपने प्यारे नबी, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया, आपके उसमें अमल वालदैन करता कौन हूँ, से फिरके से थे? सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, ठीक है। कोई बाबे अच्छा, शाबे को नहीं मानेंगे, 5 मैंने वक्त कहा नमाज पढ़े, हज करे, उमरा उमर करे, गरीबों का जैया ख्याल रखे। और मरजैया, आपके वालदैन कौन से मकतबा फिक्र से थे, ये बताना है तुमने। कोई तुमने तो किसी अपनी दुकान किसी खोल ली। किसी से भी नहीं, मुसलमान है हम। अच्छा, वो शिया नहीं थे?
नहीं थे। अच्छा, भाभी नहीं थे? नहीं थे। भी मिर्जा जूनियर के फॉलोअर हैं आपके वालिदैन, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो हाँ। बंदा बात सही करेगा उसके फॉलोअर नहीं हैं। नहीं, जो दीन आपके की बात वालिदैन जो हैं वो मिर्जा जूनियर के जो फॉलोअर हक की हैं। बात करेगा और उसके मर्जी जो follower सवाल में वो हक की बात आपके वालिदैन नहीं हक की बात करते, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। वो मिर्जा जूनियर के फॉलोअर हैं। मैं आपको कह रहा हूँ हर उस बंदे के हम फॉलोअर हैं जो हक की बात ओहो, करेगा। सैयदना ओ जनाब, एक मिनट, वही तो अभी पूछ रहे हैं पता ना। चल जाता है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, सैयदना अमीर मुआविया रजी ताला अन्हु, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी किसी भी सहाबी, किसी भी नबी, किसी के भी जो है वो खिलाफ हम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सब पे ईमान है। मिर्जा इंजीनियर तो सैयदना अमीर मुआविया रजी ताला अन्हु और हजरत आयशा रजी ताला अन्हा के ऊपर बकवास करता है, उनको ख्वारजी करता कहता है है। तो वो छितर अभी खाएगा, करता है तो वो क्या जी? छितर खाएगा, हम क्यों लो जी, करें? जो देखें जी, जाहिल का बच्चे को देखें, वो सहाबा पे तबर्रा कर रहा है और ये कह रहा है वो छितर खाएगा, फिर कहता है आई लव यू मिर्जा इंजीनियर। लो, मैं ये कामल कहता हूँ कि जो बात गलत करता है उसकी मजम्मत करेंगे, जो सही करता है उसको भी गलत कह दें। ओ भाई, जो फिर सही बात करते हैं वो आप माने भी तो सही ना। जो आप सुबह नमाज पढ़ के फजर की और 12 बजे आप तो मैं चल मैं मर्ज़ी क्या थले कहूँ कि वो उतर नमाज जा, से थले उतर जा, तेरा तेरा टाइम पूरा हो गया, तू एवें ही लोची बात कर सही तो रहा है। सर आप दोजख का चक्कर भी जो लगवा बंदा दिया। है उसको ज्यादा एक मिनट टाइम लाइन ना पर दें। भाई। जी 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 बिल्कुल, अब मैं आपकी बात करने का मौका देता हूँ। अच्छा, इसने जनाब मिर्जा जूनियर मंगोल छोकरे को कहा जी कि वो दोजख का चक्कर भी लगा लेगा, और अभी जनाब इसने मिर्जा जूनियर को जनाब वो कह दिया है कि वो सहाबा पे जो तबर्रा करता है तो उस बिना पर वो अपना खुद जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ वो उसको आई लव यू भी कह रहा है। तो ये लोधी भाई आपकी आवाज चलेगी जी, लालपुरिया भाई। सर मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा, फिर नीचे चला जाऊंगा, आप किसी और को उठा लीजिएगा। ये जो आपने तस्वीर लगाई है ना, इसके ऊपर कुत्ता बना के लाएं इस खंजीर को। दूसरी बात, इस पर करोड़ों लानतें, और ये अली भी इस दौर के अंदर जो है जो दज्जाली फितना बन के आया हुआ है। ये जो मिर्ज़ा जेल में है ये भी एक फितना है, ये जैसी बातें करते हैं ये जी फितना इसमें अली अली ना कहें, मिर्जा जूनियर जेल में कहें, मिर्जा जूनियर जेल, मिर्ज़ा जेल में कह ले, मिर्ज़ा जेल में भी इस दौर का दज्जाल है, फितना जूनियर है। भी साथ लगा लें। जी, दूसरी बात ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उम्मत के मामू भी हैं, कातिब वही भी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस उनके साथ नकल भी हैं। तो जो बंदा साहब कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन के बारे में कोई गलत बात कहे तो नीचे उसको म्यूट भी करें और उसको ब्लॉक भी करें। ये मेरी आपसे एक मोहब्बाना रिक्वेस्ट होगी। बिल्कुल बजा फरमाया। यार उस्मान, मेरी तो कमेंटों पे नजर नहीं होती, तो ये जो कह रहे हैं, देखें ऐसा कोई अगर गुस्ताख है तो उसको लित्तर लगा के उसके पछवाड़े के ऊपर उसको साइड पे करें। हो सकता है मेरा आपके नजरियात से, आपके मसलक से इख्तलाफ हो, लेकिन ये जो आप जो चला रहे हैं इससे मेरा टोटली मैं एग्री हूँ, मेरा इख्तलाफ नहीं है। नहीं जी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रत्ती बराबर भी कोई बात करे तो हम उसके पछवाड़े पर ना सिर्फ लित्तर लगाएंगे बल्कि और भी बड़ा कुछ लगा के उसको साइड पे करेंगे। जी, वो हमारे मुकद्दस हस्तियों में से हस्ती हैं, साहबा कराम में से हैं, रज़वानुल्लाह ताला अजमईन में से हैं, और तमाम अज़वाज मुत्तहरात हमारी माएँ हैं, उम्मत की माएँ हैं, और वो हमारी माएँ ही रहेंगी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। जो उनके ऊपर तबर्रा करेगा, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं मानता, वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम फैजान भाई। अच्छा उस्मान भाई, ये जो फैजान शेख नीचे लिखा हुआ है 28/12, इससे ज़रा ऊपर उठाएं, ज़रा इससे बड़ा शौक है 28/12 में बात करने का, ऐसा उठाए तो सही। लेकिन वो बिल्कुल कोई इल्मी किताबी वाला काम नहीं है।
कि जिससे आप कोई, मेरे ख्याल से मैं उठा तो लिया, उसको रिक्वेस्ट डाली है मैंने, तो वो कर सकता है चलो बात, बेटा कर फैजान लेने शेख के लिए। साहब आ जाओ ऊपर ज़रा, मेरा नाम भी फैजान है, ऊपर आओ ज़रा, तुम्हारा 28/12 का शौक पूरा करें। 28/12 हो या 34/12 हो या 12/12 हो, ये तो बात बाद में होगी। पहले वो अपनी माँ के 4 शोहरत पूरे करे ना यार, बकाया बातें तो बाद में। मिर्जा जूनियर जेल में कह रहा है जी सबसे पहले तौहीद का नंबर है, तौहीद के बाद जो नंबर है वो सेक्स का नंबर है। हाँ जी, अस्तगफिरुल्लाह हाँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाअनतुल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सब, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स, हाँ भाई, तौहीद के बाद किस किस को सेक्स पसंद है? आओ लैन लगो, आओ भाई आओ, मरदइयो नेड़े लगो, ते नाले अगली भी सुन लो वो। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। अच्छा, कोई खवातीन अगर सुन रही हैं यहाँ पर या यूट्यूब के ऊपर जब ये अपलोड होगी, तो अभी थोड़ी देर के लिए स्किप हो जाए भाई। खवातीन अगर सुन रही हैं स्किप हो जाए, मेहरबानी। इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है? हाँ भाई, बच्चियां तुम्हारी जो है ना वो 10 साल की हुई हैं कि नहीं हो मरजइयो, और उनको फौरी तौर पे तुमने सेक्स एजुकेशन दी है कि नहीं? तुम्हारा बाबा कह रहा है कि मरजैन जब 10 साल की हो जाए तो फौरी उसको एजुकेट करो। अगर तुमने एजुकेट ना किया तो बाहर मौलवी ने एजुकेट कर देना है। जब मौलवी एजुकेट करेगा ना वो काम खराब हो जाएगा। घर ची सिखाओ भाई मरजइयो। तो जिसने अभी तक अपनी बाजी को नहीं ना सेक्स सिखाया, ते फिर साडे हल टोरो। जल्दी करो, लाइन बनाओ, जल्दी आओ, लेने लगो। ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। हाँ भाई, परेशान नहीं करना अपनी बाजियां नु तुसां, नहीं तो वो तो परेशान हो जाएगी, खून से कपड़े भर जाएंगे, फिर परेशान हो जाएगी। तो मर्जैन को परेशानी से बचाएं, फौरी तौर पे एजुकेट करें, उसको बताएं कि खून किस किस वजह से निकलता है। हाँ, बच्चों के बैग के अंदर आप बच्चों के बैग के अंदर रुमाल। अच्छा जी, क्योंकि तुसा मुठ मुठ मारनी हुंदी है पुत्र बच्चे हो मरदइयो। जो आंदा पिया कि जदों बच्चे स्कूले जान लगन मरदइयां दे ते उन्हां दे बैग दे विच रुमाल पा के टोरो, बाद चों हत्थ गंदा हो जांदा है ते ओ फिर साफ ते कर सकन ना। बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके कुड़ियां दे पुत्र अपनी बाजियां दे बैगां दे विच 2 पैड, एक अगे लाने वास्ते एक पिछे लाने वास्ते। हाँ, 2 पैड पा के टोरिया करो, नाले उन्होंने दसना भी जे केड़ी जगह ते लाना है। वो एवें ना गोडे ते बन ले किधरे काम खराब हो जाए। एजुकेट करना जे पूरा, सेक्स एजुकेशन के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे। अगर पहले ही एजुकेट करना है, नहीं तो गल काम खराब हो जाएगा। उन्हें पैड किसी और जगह ते ला लिया ते फिर स्यापा ते पै गया ना। उन्होंने पहले एजुकेट ना किया ते मरजइयो तुहानू मैं पा लेना लम्मे। ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। हाँ, बच्चियों को नाल है भी उन्होंने कहना है परेशान नहीं होना। ऐसा मामला हो गया, परेशान नहीं होना, समझ आई कि नहीं? परेशान नहीं होना मरजना। उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ बेचारी बच्चियां, बेचारी बच्चियों के साथ पहली दफा जब हुआ था। और दसो मरदैया किती किती बाजी नाल पहली दफा होया है कि नहीं होया? दसो सानू मरदैयो, नेड़े लगो।
तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी अब तमाशे लांदियां ने पईयां तुहाडियां मर्दाना आए, पहली दफा जब उसके साथ हुआ तो कितना तमाशा लगा। तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था। सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਰੱਜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਉਹ ਮਰਦਈਓ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਓਏ ਚਸਕੋਰੇ ਮਰਦਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਮਰਦਈਓ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਜ਼ਰਾ। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब देख लो तुम्हारा बाबा जो है ना अपनी कुड़ी रज्जो के वो उम्र भी बता रहा है, तो तुम लोगों के अंदर तो अपनी बच्चियों की उम्रें बताना, उनकी शलवारों के साइज बताना और पैड के साइज बताना, और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान है, बड़ा तुम्हारे नजदीक तो ये बड़ा फर्ज वाजिब है और बड़ा स्वाब का काम है भाई। तो कोई मर्ज़ई भी अब आएगा तो हम उससे पूछेंगे भाई, तो ये नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, पहले से मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। तो परेशान हो गए तो काम खराब हो गया, परेशान नहीं होना मरज़ैया। मैं पुत्तर हूँ पूछना है जेड़ा मरज़ैया यार, मैं 5 घंटे तो पिछों सुन रहा वा गुफ्तगू, ते तुसा मरज़ैया ने खप पाई है, हुण होवो सीधे जरा आओ सामने आओ, नेड़े लगो, तुहाडी ऐसी वो आके उज़ैर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया, बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं। ओ ना मरज़ैन नु ना रोआ है, पूरा दिन रोंदी रहंदी है मरज़ैन, मर जाओ मरज़ैयो, ज़ालमो, ओए ज़ालम मरज़ैयो, पूरी दिन रोंदे हो अपनी कुड़ियां नु, ओए ज़ालमो, ओए बेशर्म ज़ालमो मरज़ैयो, लख दी लानत तुहाडे दे उत्ते। कि ये मामलात हो गए, तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप अच्छा वो देखें इस बगैरते आजम है, बगैरते आजम की देख लें कि जो बात उसकी कुड़ी रज्जो ने आके अपनी माँ को बताई है, इसको नहीं बताई, वो सोशल मीडिया पे बैठ के करोड़ों लोगों को बता रहा है। वो देख ले इस बगैरते आजम की बगैरती। अब वो अंडरवेयर का जिक्र कर रहा है भाई, ऐसा सुनिए जरा। मामलात हो गए, तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने, उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, सेक्स सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। वो जो अपनी लड़की रज्जो के अंडरवेयर तक का जिक्र कर रहा है, सारी दुनिया को बता रहा है, और डुब के मर जाओ मरज़ैयो, लख दी लानत। कोई मिर्जे कादियानी दा मूत्र मैनू लभे ना थोड़ा जिहा किधरों, और जेड़ा दिन और रात 100 दफा वो करता था मूत्र, तो वड्डे मिर्जे के मूत्र ते नक होना है तुहाडा, तुहानू मैं उहदे विच डोब के मारना मरज़ैयो, लख दी लानत। लाओ ए लित्तर पाओ इन्हां नू लम्मे। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हाँ जी शेख साहब, इन्नी लतरोल काफी है कि होर करानी तुसी। मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशीस रिकॉर्ड करूं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये हेलो, वो कह रहा है मैं एक फिल्म बनाऊंगा अब पोर्नोग्राफी की, बस मेरी वो पोर्नोग्राफी सेक्स की वीडियो बस दिखा देना, बस मरज़ैन को और मरज़ई को, बस एजुकेट हो जाएगा। ठंडे बगैरत ने मरज़ई। हाँ जी, नहीं असी हो ठंडा करांगे इन्हां ये ठंडे बगैरत ने इदां दी जेड़ा मरज़ई आया ना, ते ओदी कुड़ी दा पैंपर दा साइज पूछया करो, उनको तेरे बाबे ने किया भाई। हाँ 10 मरज़ैया, चल उस्मान संभाल बराड़ नू, मैं हथ लाना च बस ला छड़े है। जी सादे मोहतरम, मैं इतने वक्त में नमाज पढ़ ली है, मैं ना अब
अफ्तारी का थोड़ा इंतजाम करना है, तो ब्रॉड खत्म करते हैं, काफी देर से बैठे, तो फिर बाद में ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਵੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ बर वक्त इनको खुराक की जरूरत है खुराक ना दोगे इनके हाजमे खराब हो जाने हैं बर वक्त इनको डोज देते रहो ओए सुमामा लोधी टुर गया है ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਕਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆ जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम, मैं इंशाल्लाह मैं फिर इजाजत चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह हाँ ठीक है और जाते जाते पैगाम भी ओ यार पैगाम देईदा ਹੁੰਦਾ यार उस्मान ओ भाई मर्ज़इयो अगली वीडियो का इंतजार करो और जल्दी जल्दी हो नेड़े होया जे थोड़े जे नेड़े कानन उरा करो ए कादियानी मर्ज़इयो ते कादियानी ओए नेड़े होया जे ए जरा ए सुन लो ते बाद चो मैं फिर सवाल करना सवाल बाद चो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ठीक हो गया ए यार ए वीडियो सुनिया जो मर्ज़इयो नेड़े होया जे ए उरा ही थोड़ा जा हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होगी ना आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है ठीक है ना हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है खलो के गया बाओ इनू बाओ ये नहीं सर पहनना हूं ये नहीं सर पहनना ये खलो गई ये शै मेरी यार पूछना आया सी ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ ਜੀ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਕਰੋ जी ठीक है उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम।